One decision given by Supreme Court related to the health of the women of India, under Article 21. What is the decision, you know? जैसे महिला सशक्तिकरण खूब बात होती है, क्या महिलाएं वास्तव में सशक्त हुई है या सशक्तिकरण की वजह से क्या सामाजिक ताने बाने भी कुछ छिन्न भिन्न हुए हैं? What is the biggest challenge in front of Gen Z in a present scenario? Yes, please come in. Ma'am, Hi, बैठिए. thank you, ma'am. So Neha, your medium for the interview is Hindi, English or bilingual? Ma'am, it is English. Okay. Introduce yourself without telling your name and address. Yes, ma'am. Ma'am, I have completed my graduation in political science and ancient history. And ma'am, previously I have worked in an edtech company for 1.5 years. Ma'am, my interests are reading novels and ma'am, personal journaling. Okay, so basically you are a student of political science and ancient Ancient history. Okay. Man is born free, but everywhere he is in chains. Who said this? And can you please explain this statement? Yes, ma'am. Ma'am, Rousseau said this thing. And ma'am, he said this in the context that man is born free and everywhere he is in chains. So he referred to the society and the free will that people are not getting. The society should be based on the free will of the people. And so we need deliberate democracy or participative democracy so that people can exercise their free will. Okay, and what is the concept of general will according to Rousseau? Ma'am, when all people come together and give their collective free will, then it becomes the general will, ma'am. Okay. What is Rawls' theory of justice? John Rawls? Yes, ma'am. Rawls' theory of justice try to provide justice to the society in an inclusive way. Ma'am, in today's contemporary world, we can see the affirmative action thing that justifies the Rawls' theory of justice. Okay. What is veil of ignorance? Ma'am, veil of ignorance is one of the theories that was given by John Rawls. In this, he says when one person is behind the veil of ignorance and he doesn't know the caste, creed, or any other information about the person on the other side, the actual, I would say, the judgment that will the judge take regarding the thing that, ma'am, that will be the veil of ignorance. Okay. There is one decision given by Supreme Court Yes, ma'am. related to the health of the women of India, under Article 21. What is the decision, you know? Yes, ma'am. Ma'am, the Supreme Court gave judgment that menstrual health of the women and also comes under Article 21, right to life and human dignity, ma'am. Okay, so in which case this judgment came? Ma'am, I don't remember. Okay, the no exact problem. judgment, What ma'am. impact Sorry, you ma'am. see? Ma'am, the state has a moral responsibility and also a constitutional responsibility to provide women with sanitary pad and the menstrual health thing, ma'am. And ma'am, the society will get further awakened for the menstrual hygiene and ma'am, menstrual health that women faces problems. And now every section will be able to come to know about this. Okay, thank you, sir. ये आप भदोही से बिलोंग करते हैं, भदोही का सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या है? जी सर. सर, भदोही का सबसे फेमस प्रोडक्ट हैंड वोवन कारपेट्स है सर भदोही के. कारपेट्स का कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी हाल के दिनों में, बल्कि कुछ वर्षों से उसका मार्केट बहुत डाउन हो गया है. उसके पीछे कारण क्या है? सर, जो भदोही का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कालीन की मांग रहती थी, वो मांग धीरे धीरे कम होता चला गया. उसके पीछे रीज़न क्या है? सर, भदोही के जो हैंड वोवन कारपेट्स हैं, क्योंकि वो वीवर्स बनाते हैं मिलके, तो वो थोड़े से प्राइसली होते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में. और सर, इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटर्स जैसे चाइना और टर्की अपने मशीन बेस्ड कारपेट जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है, उनकी कॉस्ट कम है तो उसको कम प्राइस में कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस पे बेच रहे हैं. तो सर, इस वजह से भदोही के एक्सपोर्टर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से प्रोडक्शन लो हो रहा है. रग मार्क क्या है? सर, एग्जैक्टली सर नहीं पता, सॉरी कोई सर. बात नहीं. ये बताइए कि आपका एंशियंट हिस्ट्री रहा है ना, Yes. इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास जब आपने पढ़ा तो उसमें से कौन सी ऐसी बात थी या कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को प्रभावित किया हो? क्योंकि व्यक्तित्व तो कई बातों से बनते हैं ना हमारे व्यक्तित्व. तो उस व्यक्तित्व में आप माता पिता का भी योगदान रहता है, इतिहास के भी जब हम पढ़ते हैं कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण लगती है, बहुत इम्पैक्टफुल लगती है और उसका असर. तो आपको इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में कोई ऐसी शख्सियत है जो आपको बहुत प्रभावित करता है? Yes, sir.
सर अगर मौर्य किंगडम तो को देखें तो उसके जो अशोका जो हैं, अशोक मौर्य, जिन्हें अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है, उनकी पर्सनैलिटी से मैं काफ़ी अफेक्टेड हूँ, क्योंकि सर उन्होंने भेरीगोज से धम्मगोज जाने की जो अपनी पहल की थी, उस वजह से सोसाइटी में पीस एस्टेब्लिश हुआ सर। और सोसाइटी को एक सॉफ्ट पावर जो हम कह सकते हैं, जो हमें आज के टाइम में भी इन्फ्लुएंस होती है काफ़ी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उससे, सर उसके साइड हम ओरिएंट हो पाए। लेकिन एक शासक का काम वीणा बजाना है या अहिंसा की नीति का पालन करना है या वक्त के हिसाब से युद्ध करना भी होता है ना? यस तो सर। आपको ऐसा नहीं लगता अहिंसा की नीति का पालन करके जो है मौर्य सेना को कमज़ोर किया और इसी वजह से उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों के काल में यूनानी शक पहले कुशाणों का आक्रमण हुआ और उसने भारत को जीत लिया? तो इसका मतलब है कि अशोक की जो धम्म नीति थी या अहिंसा की जो नीति थी, उस नीति ने कहीं ना कहीं तो राज्य को, देश को कमज़ोर किया। सर जो पीस की हम बात कर रहे हैं सर, वो स्ट्रेंथन भी करती है इस चीज़ को कि हम अपने जो, जैसे अशोका ने अपने बहुत डिप्लोमेट्स भी भेजे अदर कंट्रीज़ में, ताकि उनसे एक हमारा रिलेशन बिल्ड हो सके। तो सर उनसे हमारे रिलेशन स्ट्रांग ही हुए अगर हम हिस्टोरिकली देखें। और सर एक जो रूलर होता है उसकी पावर सर सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होती है कि वो कितने स्ट्रांगली और मसल पावर से सर रूल कर रहा है, वो अपने लोगों को कितना समझता भी है और अपने इसको प्राथमिकता देता है पीस को। और सर इसको भी नहीं भूलता है, वो एक बैलेंस क्रिएट करता है मसल पावर और पीस के बीच में। तो सर वो एक अच्छा शासक होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ऐसा स्थल बताइए जहाँ से मंदिर के, आधुनिक मंदिर के प्रमाण मिले? कोई ऐसा स्थल है? सर रिलीजियस ऐसे कोई बिल्डिंग के सर मुझे एक्सकवेशंस नहीं याद आ रहे थे। भारत के इतिहास में मंदिरों के प्रमाण कब से मिलते हैं? सर गुप्ता टाइम से मिलना चालू हुआ, उन्होंने नागराज टाइम। क्लाइमेक्स पे कब पहुंचा? सर क्लाइमेक्स पे सर पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता में। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में मंदिर निर्माण की 3 कला शैली है ना? नागर, बेसर, द्रविड़ कला शैली। क्या द्रविड़ कला शैली का कोई ऐसा टेम्पल बता सकते हैं जो कि उस कला शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है? सर बृहदेश्वरा टेम्पल सर, जिसको माना जाता है कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर है द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल का। और ये बताइए कि जैसे महिला सशक्तिकरण, यस, खूब बात होती है, क्या महिलाएं वास्तव में सशक्त हुई है या सशक्तिकरण की वजह से क्या सामाजिक ताने बाने भी कुछ छिन्न भिन्न हुए हैं? तो महिलाएं जो है पहले से सशक्त हुई हैं, बट अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो उनको रोज़मर्रा में जिसके थ्रू उनको जाना पड़ता है सर। और सर जो एम्पावरमेंट है वो जहाँ लैग कर रही हैं वो चैलेंजेस सर, पहले बात पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है लोगों में अभी भी वो चेंज नहीं हुआ है। इकोनॉमिकली वुमेन का अगर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा जाए तो वो भी अभी उस पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाया है सर। और सर थर्ड वे में वुमेन के वर्क को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है। अगर वो होम मेकर हैं तो उसको केयर इकोनॉमी में नहीं जोड़ के देखा जाता है। इससे भी जो वो अपना पोटेंशियल प्रोवाइड करती हैं उसकी उतनी कद्र नहीं हो पाती है सर। कहीं महिलाओं की जो शक्तियाँ बढ़ी है, ठीक है, वो सकारात्मक है, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि महिलाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी किया है जिसकी वजह से सामाजिक ताने बाने छिन्न भिन्न हुए हैं कुछ? सर जैसे एक एग्जाम्पल है डोरी सिस्टम, ठीक है, डोरी एक्ट आया तो उसका मिसयूज कितना बढ़ा, इतना बढ़ा कि अहमदाबाद में जो है पुरुषों ने एक रैली निकाली कि मुझे मेरी पत्नियों से बचाओ। तो कहने का मतलब है कि क्या ये जो सशक्तिकरण हो रहा है उसको थोड़ा संभालने की ज़रूरत है, महिलाओं को उसको सकारात्मक रूप से लेने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं कि पावर मिल गया तो बदला लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? नो सर, इक्वालिटी का मतलब कभी ये नहीं होता कि एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देना, बल्कि उनको एक इक्वल लाइन पे ले आके स्टैंड करना। ये गवर्नमेंट का भी मोटिव है कि वुमेन को इक्वालिटी दी जाए जेंडर्ड। और सर वुमेन जो सर इसका मिसयूज़ हो रहा है, इसको सर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है ये चेक करके कि जो केसेस एक्चुअल में फाइल किए जा रहे हैं वो क्या ग्राउंड रियलिटी पे सच है या नहीं है। ओके सर, In the present scenario, is there any news in the society which is really heartbreaking for you? Sir, yesterday's news, Not yesterday, day before yesterday, or a month, or so on. so one of socio-economic issues that you're talking about. Any kind of news. जिसमें आपको Sir, अंदर से Epstein बहुत files that recently came into the news. Sir, Epstein files show that how the politically influenced and the higher authorities and the money influenced people are still in the act of sexually exploiting children and other peoples who are vulnerable sections of the society. What is the impact of these kind of files into the society? Sir, the society firstly got very much shocked that people, some of the society
some of the people that were involved in that case, they were inspiration to many of the people. So first of all, they started questioning their principles, that the principles that they actually inspired, are they really what they stand for? And so second thing, the society started questioning state, if state can actually protect us. And so third thing, that the society is also thinking that who are the actual people, or we should get empowered by ourselves. We should Got it. look for But the tell me, options. what is the main reason behind these all such type of incidents into the society, and what kind of mentality is this? Can you elaborate this? I would say that on the mentality. In your personal opinion, what kind of mentality is this, or is there any psychological disorder issues with the people? Yes, I would say psychologically it is a very sick thing. The people should not promote such thing or get involved in such thing. The victims were minor when they were involved, and so many women came and gave their testimony to them. So the pain of the women can be felt. Many women also went for the suicide thing. So, sir, these people's mindset show that they are very much involved in the money and the muscle power thing, so that they are moving towards, I will say, sir, I will quote Hannah Arendt in this, the banality of evil thing. Evil became so much prevalent that an ordinary man can't even see evil as evil. Good, fine. What are the strengths of Gen Z? The strength of You are a Gen Z? Yes, I am. Or a Gen Gen Alpha? Z. I am a Gen Z. You are a Gen Z. So what are the strengths of Gen Z? So Gen Z are self-aware of the informations they are having. They are aware of their political rights and economic They are aware rights. of their political rights? Yes, I would say. as a What Gen is Z, the right to recall? Have you heard about this? The right to recall gives people an option that they can call back their representative if they are actually not delivering the things that people are expecting from their Should we representative. implement this in our political system? Yes, sir, we can implement And this. what needs to be done if you want to implement this? So we need to make an amendment, and Constitutional amendment? I would not say it will be a constitutional amendment. It can be done through executive action too. Executive actions. And what is the biggest challenge in front of Gen Z in a present scenario? So in present scenario, Gen Z is facing, I would say, first of all, unemployment, low skill development, and so third thing, more engagement on social media that is actually needed, and not focusing on actually important things that are needed to be seen in the society. ठीक है. Thank you so much. ये बताइए, आपको पर्सनल जर्नलिंग पसंद है, क्या है ये? मैम पर्सनल जर्नलिंग में मैम हम अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और जो हम चीज़ों को फील कर रहे हैं, वो सब मैम लिखना हम उसमें चाहते हैं पर्सनल जर्नलिंग। तो ये माना जाए आप इंट्रोवर्ट हैं? मैम मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो फिर आप अपनी बातें कह के लोगों से क्यों नहीं बताती हैं, लिखती क्यों हैं? मैम खुद से भी बातें करना मेरे हिसाब से ज़रूरी होता है, जिससे हम खुद को एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसे चेंज हो रही है और डेवलप कर रही है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को पिछले 10 वर्षों में कैसे बदलता हुआ देखती हैं? यस मैम, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी और चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओपन थी। मुझे नहीं पता था कि एक लिमिट के आगे बोलना होता है या नहीं होता है, कहाँ तक चीज़ें शेयर करनी होती हैं। मैम फिर अब तक के मैं जो मेरे पर्सनालिटी में चेंजेस हुए हैं, मैं पहले से अब चीज़ों को लिमिट में रखना चालू कर दिया है। मैंने खुद से बातें करना ज़्यादा चालू कर दिया है ताकि मैं खुद को बेटर एनालाइज कर पाऊँ और उससे अपने डिसीजंस ले पाऊँ। ठीक है, और इसी तरीके की कुछ चीज़ें हमारे समाज में हुई कि जिसमें लोगों ने जो है खुद से ही शादी करना शुरू कर दिया, या समलैंगिक विवाह शुरू कर दिए, या लिव इन शुरू कर दिया। तो एज इंस्टीट्यूशन जो मैरिज है इंडिया में, उसका फ्यूचर आप कैसे देखती हैं? मैम मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि टाइम बाय टाइम चेंज होता है, और अभी के अगर टाइम में देखा जाए तो मैम ये काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। जैसा आपने मेंशन किया मैम कि लिव इन मैरिजेस हो रही हैं और ये सब, तो मैम आगे भी मैम ऐसे कई सारे की टर्म्स आ गए हैं जेनजीज में जो कि मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ओपन देख रहे हैं, ओपन रिलेशनशिप के साइड लोग जा रहे हैं। और मैम मैरिज को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के ज़्यादा एज अ नीड बेस्ड इंस्टीट्यूशन को तवज्जो दी जा रही है आज के समय में। तो जो ये वाला था कि अब तुम्हारी डोली जा रही है, अब अर्थी घर से बाहर जाएगी, वो कॉन्सेप्ट माना जाए कि वो कॉन्सेप्ट, या ये माना जाए विवाह संस्था अभी जितनी मजबूती से जड़ जमाए है, अगले 50 वर्षों में कमज़ोर हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी? यस मैम, ये कह सकते हैं कि जो पहले की परंपरा थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है और जनरेशन का माइंडसेट चेंज हो रहा है, और इंस्टीट्यूशन में मेनली लोगों के माइंडसेट पे ही बिल्ड होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकती हैं। बैठिए। थैंक यू।
सो नेहा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, क्या लगता है कुछ कहाँ पे अभी काम करने की ज़रूरत है, बची है? मैम फ्लो और इम्प्रूव किया जा सकता नहीं, वो अब ठीक है, उसका कोई टेंशन मत लीजिए। एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि हमने एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे, है। बट वहाँ पे इंटरव्यू अक्सर फैक्ट्स पे भी हो जाते हैं। वहाँ मैम पे फैक्ट्स तो हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, भूल जाइएगा तो माफ़ी मांग लीजिएगा। इतने सारे फैक्ट्स हैं, अनगिनत, तो याद तो नहीं रह सकते, बट मोटे मोटे, जैसे अभी एआई की बहुत चर्चा हो रही है, तो इंडिया का एआई समिट जो है उसके बारे में जो कंक्लूजन है वो अब आ गया है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एआई पॉलिसी क्या है, एआईसीटी कहाँ बनेगा, यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा, ये सब फैक्ट जो अभी कम से कम तत्कालीन समय में चर्चा में है, उनको पढ़ लीजिएगा। बजट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बजट में भी जो महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सारे फैक्ट जहाँ पे बात हो सकती है वो मैं आपको हिंट कर रही हूँ। या जैसे महिलाएं विधायक, सांसद, मंत्री, महिला आयोग की अध्यक्ष, ये सब फैक्ट थोड़ा पढ़ लीजिए। बाकी अगर एनालिसिस वाले सवाल हुए तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से डील कर लेंगे, उसमें कोई समस्या है नहीं। आपकी एंट्री, ग्रीटिंग, बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट, ड्रेस, सब कुछ एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैम ड्रेस मैम ये पहन के नहीं, ये साड़ी भी पहन के आप जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, स्पेशली जब महिलाओं के मुद्दे पे बात हो, कि आपका वन साइडेड अप्रोच नहीं दिखना चाहिए। जैसे सर से आपकी बात हुई अबाउट घरेलू हिंसा एंड एवरीथिंग, तो आपकी पतियों को उतरना पड़ा कि भाई हमें पत्नियों से बचाओ, तो उसमें आप उसके जवाब में साथ में ये भी कहिए कि सर कानून का मिसयूज हर उसके साथ है, कोई घरेलू हिंसा ही अकेला, घरेलू हिंसा या दहेज या इस तरीके के ही नहीं, भारत में लाभ लेने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी कानून के साथ हो सकता है। तो सिर्फ ये कहना कि क्योंकि महिलाएं मजबूत हो रही हैं, महिलाएं अपने हक को जान गई हैं इसलिए ऐसा करें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वो जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, आप भी जानती हैं इस तरीके के तमाम केसेस भी हुए जिसमें कई सारे पुरुषों ने आत्महत्या तक कर ली कि वो इतना परेशान हो गए उन चीज़ों से। तो कुछ एक दो केसेस का नाम भी आप लीजिएगा, साथ में बताइएगा कि किस तरीके से सोसाइटी और लॉ जो चीज़ें, वो सब चीज़ों पे बात करिएगा। क्योंकि किसी भी कानून का दुरुपयोग होने की आशंका तो बनी ही रहती है जब तक हम ज़मीनी हकीकत चेक ना करें, क्योंकि हम एविडेंस पे चलते हैं, गवाहों पे चलते हैं, और वो सारा सिस्टम आपको पता है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ जो चीज़ें हैं, एक तो इस तरह से करिएगा। दूसरा, जब ये सवाल किसी और मुद्दे पे भी हो सकता है कि भाई महिलाएं सशक्त हो रही इसलिए तलाक के केस ज़्यादा हो रहे हैं, या महिलाओं के सशक्तिकरण से ये बदलाव हो रहे हैं, तो आप उस पर ये कहिएगा कि सर एक ये भी चीज़ है कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है उसमें हमें ये चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा समाज मजबूत महिलाओं को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। यस मैम। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मजबूत महिलाओं को मजबूत करना है, सबका मिशन है, लेकिन मजबूत महिलाओं को झेल पाना समाज में, वो झेल पाएगा समाज, ये भी एक मुद्दा है। मैम बट मैं ऐसी बातें कहूँगी ऐसे नहीं कहेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ कि सर मजबूत महिलाओं को उनका जो क्रेडिट है वो मिलना, या मजबूत महिलाओं के द्वारा किए गए चीज़ों को स्वीकार कर पाना भी एक पितृसत्तात्मक सत्ता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार तलाक इसलिए होता है कि महिला ज़्यादा काबिल हो गई, तो पुरुष को लगता है कि अब मेरा अहम आहत हो रहा है। एग्जैक्टली, तो आप वो चीज़ भी रखिए। तो वो बैलेंस अप्रोच वो होता है कि कई बार पुरुषों के ऊपर समाज दबाव बनाता है कि बताओ तुम पत्नी तुम्हारी ऐसा हो गई, या तुम पत्नी कमा रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जबकि हमने समाज में ऐसे भी केस देखे जहाँ पे पतियों ने पत्नी को पढ़ा के बनाया या पत्नियों ने पति को पढ़ा के बनाया। तो सब तरीके के उदाहरण हैं, उस तरीके से आप अपनी चीज़ों को रखिएगा। बाकी आपका ठीक है, आपने बहुत अच्छे से अपनी पर्सनालिटी की व्याख्या की, वो सब चीज़ें आप बहुत बेहतर, वो चीज़ें आप कर रही हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप पूछ सकती हैं। हाँ, लैंग्वेज का वहाँ सवाल जिस भाषा में हो उसी में जवाब दीजिएगा। सवाल का जवाब आए तो दीजिएगा, नहीं आए तो आई एम सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल, ऐसे करके माफ़ी मांग लीजिएगा। मैम मुझे पहले ये निकल जा रहा, सॉरी बाद में निकल रहा है। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैम इतने सारे पैनल्स में इंटरव्यू दिया है तो मैम हर जगह सर ही रहते हैं, तो अगर वहाँ पे मैम होंगी तो मुझे लग रहा है गलती से सर अगर पहले निकल जाए तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, क्यों बुरा नहीं लगेगा, उनको भी पता है कि महिलाएं कितनी हैं। मुझे नहीं लगता लगेगा, पर ध्यान रखिएगा 2-3 मिनट का संवाद है, उसमें इस तरीके की चीज़ें ना हो तो बहुत बेहतर है। ठीक है, मैंने वही बात बोली ना कि महिला सशक्तिकरण की बातें करना और महिलाओं को सशक्त करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।